صہیونی فوج کا غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر دھاوا 37 ملکوں کے 200 سے زیادہ رضاکار گرفتار قافلے میں شامل بحری جہازوں کا مواصلاتی رابطہ منقطع 50 بحری جہازوں میں پاکستان سمیت 44 ممالک کے سماجی کارکن اور رضاکار شامل اسرائیلی فورسز نے بین الاقوامی پانیوں میں گلوبل سموتھ فلوٹیلا کے جہازوں کو غیر قانونی طور پر روکا اور حملہ کیا گلوبل سموتھ فلوٹیلا نے ستمبر کے اوائل میں اسپین سے سفر کا آغاز کیا تھا وزیراعظم محمد شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کی ستائش مشتاق احمد مظہر سعید شاہ وحاج احمد اسامہ ریاض اسماعیل خان عزیز نظامی فہد اشتیاق اور دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم مشن میں حصہ لیا حکومت انسانی جان کے احترام محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کی حمایت کرتی ہے اپنے شہریوں کی محفوظ واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں وزیراعظم محمد شہباز شریف صدر آصف علی زرداری اور وزیراعظم محمد شہباز شریف کی گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت امدادی مشن پر حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے عالمی برادری غزہ کے شہریوں کے لیے امداد کی بلا تعطل فراہمی یقینی بنائے مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جانے والے تمام کارکنوں کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ اسرائیلی بربریت فوری روکنا اور فلسطین میں پائیدار امن وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد مختلف ملکوں میں شدید احتجاج کولمبیا کا تمام اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے اور اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ فوری ختم کرنے کا اعلان یونان جرمنی بیلجیم ارجنٹینا تیونس لیبیا مصر ترکی برطانیہ کینیڈا اور اٹلی سمیت کئی ملکوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے اٹلی کے دارالحکومت روم میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن اور شاہراہیں بند کر دیں برسلز برلن ایتھنز اور بیونس آئرس میں بھی بڑی ریلیاں ترکی میں امریکی اور اسرائیلی سفارتخانوں کے باہر بڑے مظاہرے غزہ پر قابض اسرائیلی فورسز کی وحشیانہ بمباری مزید 37 فلسطینی شہید متعدد زخمی حملوں میں رہائشی علاقوں اور سکولز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے محاصرے اور قحط کی صورتحال کے باعث بچوں کی بھوک سے اموات میں اضافہ اسرائیل کی جانب سے مغربی کنارے میں بستیوں کی توسیع تیز غزہ کے شہریوں کو فوری انخلاء کا الٹیمیٹم شہر خالی نہ کرنے والوں سے دہشت گردوں کی طرح نمٹا جائے گا اسرائیل کی دھمکی پاکستان سٹاک ایکسچینج تاریخ کی بلندیوں پر دوران ٹریڈنگ انڈیکس نئی بلند ترین سطح 1,68,619 پر پہنچ گیا دن کے اختتام پر 100 انڈیکس میں 2,849 پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ 1,68,489 کی ریکارڈ سطح پر بند 70 ارب 19 کروڑ روپے کی مالیت کے شیئرز کا کاروبار پاکستان اور چین آہنی بھائی مستقبل ایک دوسرے سے منسلک پاکستان نے ہمیشہ چین کے موقف کی حمایت اور تائید کی چین کے ساتھ ہمارا تعاون اب خلا تک پہنچ چکا ہم ہر طرح کے حالات میں چین کے ساتھ کھڑے ہیں اپنے وسائل کے بہتر استعمال سے خود انحصاری حاصل کر سکتے ہیں تمام شعبوں میں چین کے تجربات سے استفادہ کریں گے ہم پرامن بقائے باہمی پر یقین رکھتے ہیں اب جنگوں کا نہیں معاشی ترقی کا سوچنا ہوگا چین کا مستقبل تابناک ہے پورا مشرق اس کے ساتھ مل کر کام کرے گا صدر آصف علی زرداری کا چین کے ٹی وی CGTN کو خصوصی انٹرویو وزیراعظم محمد شہباز شریف کا آزاد کشمیر کی صورتحال کا نوٹس شہریوں سے پرامن رہنے کی اپیل مظاہرین امن عامہ کو نقصان پہنچانے سے گریز کریں پرامن احتجاج ہر شہری کا آئینی اور جمہوری حق ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے مظاہرین کے ساتھ تحمل اور بردباری سے پیش آئے وزیراعظم محمد شہباز شریف کی عوامی جذبات کا احترام یقینی بنانے اور کسی بھی قسم کی غیر ضروری سختی سے اجتناب کی ہدایت انہوں نے ہمیں یہ اقمار بنایا ہے انہوں نے ہماری وردیاں بھی اتاری ہے پتھر بھی مارے ہیں اور سوٹے بھی مارے ہیں پہاڑیوں پہ چلے گئے وہاں سے فائر کرتے رہے
फायर करने के बाद उन्होंने आंसू गैस फेंका। उनके हाथों में वो किल लगाए हुए थे, वो आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। मुजाहिरीन थे ना, उन्होंने हमारे यानी कि रहायशगाह पे आए, रहायशगाह का घेराव किया है। घेराव करने के बाद उन्होंने हमारा सब कुछ सामान वगैरह जला दिए। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। हुकूक के नाम पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का पुरतशद्दुद एहतजाज, 6 शहरी जाँ भग, 50 जख्मी, 3 पुलिस एहलकार शहीद, 172 जख्मी, 12 की हालत तशवीशनाक। आज़ाद कश्मीर में ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी में शामिल शरपसंदों ने पुलिस पर हमले किए, असलहा और हिफाजती सामान छीन लिया, हमें जरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ी, पत्थर और डंडे मारे। शरपसंदों के हाथों जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद का दौरा। आज़ाद कश्मीर के पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी होने वाले पुलिस एहलकारों की इयादत की, जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। चंद शरपसंद दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मज़मूम मकासद हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। हुकूमत कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए हमा वक्त तैयार है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। वज़ीर आज़म की कायम करदा कमेटी ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी से मुज़ाकरात के लिए मुजफ्फराबाद में मौजूद। ताअत्तुल का शिकार मुज़ाकराती अमल दोबारा बहाल किया जा रहा है। तवक्को है ज्वाइंट एक्शन कमेटी भी नेक नियति के साथ हमारे साथ बैठेगी। ज़्यादातर मुतालबात तस्लीम कर लिए गए हैं। सूरत हाल जल्द अज जल्द मामूल पर लाने के लिए कोशां हैं। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगी। मुल्क दुश्मन अनासिर अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। मुज़ाकराती कमेटी अरकान की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील। मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों ने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं, जेलें काटी, फांसियां चढ़े, गोलियां खाईं और पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत की कीमत रोजाना अदा की। आपको जो सहूलियात मैसर हैं इनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। कश्मीर की जंगों में पाकिस्तान के हर सूबे के जवान शहीद हुए। पाकिस्तान ने हमेशा हर फोरम पर कश्मीर की बात की है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर बयान। कि ना सिर्फ ये कि पंजाब के वासियों के लिए पंजाब जो है वो एक सेफ और महफूज सूबा बने, बल्कि मेरी बेटियों, बहनों और माओं के लिए भी वो महफूज तरीन सूबा हो, ताकि वो जब दिल चाहे, जहां दिल चाहे, बेखौफ और बेखतर होके जा सके। हुकूमत का काम ये है कि दुख में, सुख में, खुशी में, तंगी में अपने अवाम के साथ खड़ा, उनके दरमियान मौजूद हो, ताकि लोगों को यह पता चले कि हम अकेले नहीं हैं। मेरा काम है कि मैं अपने लोगों के लिए आवाज उठाऊं। मेरा काम है कि अगर पंजाब की कोई तजलील करे, पंजाब को कोई निशाना बनाए, तो मरियम नवाज शरीफ उसका जवाब दे। शुमाली और जनूबी पंजाब की तफरीक डालने वाले अवाम के दोस्त नहीं। पंजाब के तमाम शहरों को बंद मुट्ठी की तरह जोड़ कर रखना चाहती हूँ। सैलाब में लेक्चर दिए जा रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दे। तमाम सूबों के पास शख्सा वसाइल हैं, बाकी सूबों के वसाइल कहाँ जाते हैं। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, कभी अपने लोगों को किश्कौल पकड़ने का नहीं कहूँगी। अगर कोई पंजाब के अवाम की तजलील करे तो जवाब दूंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में नाखुशगवार वाक़े का नोटिस। सहाफ़ियों पर तशद्दुद के वाक़े की तहकीकात का हुक्म। IG इस्लामाबाद पुलिस से फौरी रिपोर्ट तलब। वज़ीर दाखिला की वाक़े में मुलविस एहलकारों की तयन करके इंज़बाती कार्रवाई की हिदायत। सहाफ़ी बरादरी पर तशद्दुद किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। हुकूमत आज़ादी इजहार राय पर मुकम्मल यकीन रखती है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नजरसानी दरखास्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। तहरीक इंसाफ ने किसी अदालती फोरम पर मखसूस नशिस्तों का तकाजा नहीं किया। आइन के आर्टिकल 187 का इस्तेमाल हक़ाइक़ और कानून के मुताबिक किया जा सकता है।
तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाई कोर्ट में फरीक नहीं थी। तहरीक इंसाफ की दरखास्त सिर्फ अदालती मुआवनत के लिए थी। तफसीली फैसला। सेनेटर शिबली फराज की नाअहली के बायस नशिस्त खाली करार। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा इंतखाब के लिए शेड्यूल जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान 30 अक्टूबर को खाली नशिस्त पर सेनेटर का इंतखाब करेंगे। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख 8 और 9 अक्टूबर मुकर्रर। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में 5 से 7 अक्टूबर तक वक्फे से बारिश का इम्कान। दरिया चेहलम, रावी, सतलुज के बालाई इलाकों में भी बादल बरसेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर, चित्राल, दीर, हरीपुर, कोहाट, कोहिस्तान, खैबर कुर्रम और मानसेरा में बारिश का इम्कान। दरिया सवात, पंजकोड़ा और दरिया काबुल के बहाव में इजाफा मुतवक्के। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर भारतीय फोर्सेज की जानिब से मुसलसल इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ, मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद और मजालिम मामूल बन गए। जनवरी 1989 से अब तक 96,000 से ज्यादा कश्मीरी शहीद कर दिए गए। आलमी बरादरी मकबूजा इलाके में भारतीय जंगी जराइम का नोटिस ले। अदम तशद्दुद के आलमी दिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय जंगी जराइम के हवाले से रिपोर्ट जारी। सफाक मोदी हिंदुत्व नजरिए के तहत सरहद पार दहशत गर्दी और टारगेट किलिंग में मुलव्विस। सिखों के आलमी सतह पर टारगेट किलिंग में मुलव्विस नेटवर्क बेनकाब। कनाडा ने हाई प्रोफाइल टारगेट किलिंग में मुलव्विस हिंदुस्तानी ग्रोह बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द करार दे दिया। गैंग मारूफ सिख कारकुन हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस है। द गार्जियन की चश्मकुशा रिपोर्ट। She's done it again. It's 2-2. Lovely. Oh, that's close. That is close. Yes. Master got out, and there is an appeal. Big appeal, and the wicket. Shouts of catch it. Nobody will catch that. आईसीसी विमेन क्रिकेट वर्ल्ड कप का तीसरा मैच बांग्लादेश की पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी। कौमी खवातीन टीम 39वें ओवर में 129 रन बनाकर आउट हुई। बांग्लादेश विमेन ने हदफ 31.1 ओवर्स में 3 विकेटों पर हासिल किया। मैच बीटीवी स्पोर्ट्स एचडी पर बराह रास्त। बीजिंग में चाइना ओपन टेनिस खवातीन सिंगल्स में पोलैंड की एगा शेटिक को अपसेट शिकस्त। अमेरिका की इमानोरा को क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। बर्तानिया की सोनेगाटल की भी लास्ट 8 में रसाई। एशियन चैंपियंस लीग इलीट जनूबी कोरिया के क्लब अल्सान और चीन की टीम शंघाई शेनहुआ के दरमियान मुकाबला 1-1 गोल से बराबर। लीग 2 में सऊदी टीम अल-नसर की इराक के क्लब अल-ज़वरा को 2-0 से शिकस्त। फतह के बाद अल-नसर की टीम ग्रुप डी में पहले नंबर पर काबिज। मेरे बाप के किस्से। मेरा बाप वो बदमाश था जब पहली बार मेरे बाप ने खंजर निकाला, सामने वाली पार्टी ने रख के थप्पड़ दिया। अब्बा ने खंजर फेंक दिया कि जिस काम के स्टार्ट में जिल्लत है लाना उस काम। पाकिस्तानी मजाक की दुनिया का रोशन सितारा कॉमेडी किंग उमर शरीफ को मद्दाहों से बिछड़े 4 बरस बीत गए। टीवी ड्रामों और फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए। अपनी लताफत और बरजस्तगी से लाखों दिलों को मसरूर किया। उमर शरीफ को बेमिसाल खिदमात के एतराफ़ में निगार अवार्ड्स, तमगा इम्तियाज और कई दूसरे एजाज़ात से नवाजा गया।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर। खेलों की खबरों में मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अनीस, और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। वज़ीर पाकिस्तान की जानब से जो वफाकी वज़रा पर मुश्तमिल जो कमेटी तश्कील दी गई है मुज़ाकरात के लिए, इसका एहले कश्मीर ने खैर मकदम किया है। हम इस मौके पे अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान से भी कहेंगे कि वज़ा कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल है, जो एक तनाव की सूरत हाल है, उसका इदराक करते हुए गैर मशरूत मुज़ाकरात की जानब बढ़ा जाए। ये वज़ा कश्मीर के अवाम की आवाज़ भी है। मैं समझता हूँ अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी को जो है इस मामले में मुस्बत जो है तर्ज अमल का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस वक्त जो कमेटी बनाई है, जो पार्लियामेंट के जो लोग आए हैं, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर आ चुके हैं, जिसमें हमारे साबिक सदर सरदार मसूद खान साहब भी जो है वो शामिल हैं। आज़ाद कश्मीर के अंदर लोगों का बहुत नुकसान हो चुका है। ये खिता अफरा तफरी का मुतअम्मल नहीं हो सकता। हुकूमत पाकिस्तान ने अवामी एक्शन कमेटी के जितने भी मामलात थे उनको देखने के लिए, उन पर नजरसानी के लिए एक कमेटी भेज दी है। अब इस वक्त गेंद जो है वो अवामी एक्शन कमेटी की कोर्ट में है कि अगर अवामी एक्शन कमेटी ने इससे फ़ायदा ना उठाया तो मुस्तकबिल में जो हालात ख़राब होंगे उसकी जिम्मेदारी भी कमेटी के ऊपर होगी। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के जो पैगाम है उसका मुस्बत जवाब दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की इस काबिज़ की पुरजोर खैरमकदम करता हूँ। एक हाई लेवल डेलीगेशन आज़ाद कश्मीर में भेजा है ताकि वो अवामी एक्शन कमेटी और हुकूमत के दरमियान जो चीज़ मुतालबे अवामी एक्शन कमेटी के उनको अटेंड करें, उनको हल करें। दुनिया में जहाँ जंगें होती हैं, जंगों के बाद उनकी फतूहात की कंसल्टेशन भी बातचीत से होती है, गुफ्तगू से होती है, गुफ्तगू से होती है। हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है आज़ाद कश्मीर के यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन के तहत आज़ाद कश्मीर की नज़्म नस्र को चलाना, सीज फायर लाइन के इस बार जो हिस्सा है इसका बेटर डिसीजन करना, उन्होंने कमेटी हाई लेवल अपॉइंट कर दी है। वो यहाँ पहुँच भी आई है। उसके तहत मैं अवामी एक्शन कमेटी से अपील करूँगा कि उनके साथ बातचीत करें और अपनी जितने भी मुतालबात हैं उनके सामने रखें। खबरों की तफसील की जानिब बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। तालीम हर बच्चे का बुनियादी हक। 2 बच्चों के आज एक फैसले से अपने वसाइल और खानदान में तवाज़ुन की बुनियाद रखें और खुशहाल पाकिस्तान का ख्वाब ताबीर करें। खानदानी मनसूबाबंदी और सेहत से मुतालिक मुफ्त मशवरों और सहूलियात के लिए महकमा सेहत और आबादी के करीबी मराकज पर तशरीफ लाएं। अपनों के रोशन कल के लिए दानिशमंदाना फैसला करें आज। मतवाजन खानदान, खुशहाल पाकिस्तान। डायरेक्टरेट जनरल बहबूद आबादी, महकमा सेहत और आबादी, हुकूमत पंजाब। माँ और बच्चे की सेहत और कौम के रोशन मुस्तकबिल के लिए वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की खुसूसी हिदायत पर पंजाब के 13 अजला में जारी आगोश प्रोग्राम के तहत हामला और 2 साल से कम उम्र बच्चों की माओं को दी जाने वाली माली मावनत में 15,000 रुपए का जबरदस्त इजाफा। आगोश में शामिल खवातीन के लिए अब मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में मुआयनों पर माली मावनत 23,000 से बढ़ाकर 38,000 रुपए कर दी गई है। मरकज सेहत पर रजिस्ट्रेशन और पहले तिब्बी मुआयने पर हामला को मिलेंगे 5,000 रुपए और उसके बाद दौरान हमल हर तिब्बी मुआयने पर 3,000 रुपए। जबकि बच्चे की पैदाइश मरकज सेहत के महफूज माहौल में करवाने पर 10,000 रुपए की माली मावनत दी जाएगी। इसके अलावा यूनियन काउंसिल में बच्चे की पैदाइश के इंदिराज और शेड्यूल के मुताबिक हिफाजती टीके लगवाने पर दी जाने वाली रकम 11,000 से बढ़ाकर 14,000 रुपए कर दी गई। बस अपने करीबी मरियम नवाज हेल्थ क्लिनिक में जाएं और दौरान हमल तिब्बी मुआयना करवाने पर आगोश में रजिस्टर हो जाएं। मैसेज जाने पर किसी भी जायज कैश एजेंट से बायोमेट्रिक तस्दीक के बाद अपनी रकम बगैर किसी फीस या कटौती के वसूल करें। आगोश प्रोग्राम में अपनी शमूलियत की तस्दीक और बैलेंस मालूम करने के लिए payment.pspa.gop.pk विजिट करें या 1221 पर कॉल करें। माँ और बच्चे की सेहत महफूज मुस्तकबिल की जमानत। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।
اسرائیلی بربریت کی انتہا۔ اسرائیلی بحریہ نے غزہ کے مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا محاصرہ کر کے امدادی کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ اسرائیلی جنگی جہازوں نے غزہ کے ساحل کے قریب پہنچنے پر فلوٹیلا میں شامل جہازوں کا مواصلاتی رابطہ منقطع کر کے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا۔ 50 بحری جہازوں پر مشتمل گلوبل اسموتھ فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 44 ممالک کے سماجی کارکن اور رضاکار شامل ہیں جو غزہ کے مظلوم عوام کے لیے امدادی سامان لے کر جا رہے ہیں۔ ترجمان گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی افواج نے فلوٹیلا میں شامل کئی ممالک کے 200 سے زیادہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہنا ہے کہ بے بس اور مظلوم فلسطینی عوام کے لیے امداد لے جانے والے تمام کارکنوں کی فوری رہائی چاہتے ہیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ اسرائیلی بربریت کو فوری طور پر روکنا اور فلسطین میں پائیدار امن یقینی بنانا ہی وقت کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اسموتھ غزہ فلوٹیلا میں پاکستانی شہریوں کی شمولیت کی ستائش مشتاق احمد، مظہر سعید شاہ، وحاج احمد، اسامہ ریاض، اسماعیل خان، عزیز نظامی اور فہد اشتیاق اور دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم مشن میں حصہ لیا۔ حکومت انسانی جان کے احترام، محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کی حمایت کرتی ہے، اپنے شہریوں کی محفوظ واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے اسموتھ غزہ فلوٹیلا پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے فلوٹیلا میں شریک پاکستانی شہریوں کی بہادری اور انسان دوستی کو خراج تحسین پیش کیا۔ صدر مملکت نے کہا کہ امدادی مشن پر حملہ انسانی حقوق اور بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ صدر مملکت نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ غزہ کے شہریوں کو امداد کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ صدر مملکت نے فلوٹیلا پر موجود پاکستانی شرکاء کی سلامتی اور فوری واپسی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ گلوبل اسموتھ فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کے بعد دنیا کے مختلف ملکوں کی جانب سے شدید مذمت اور احتجاج جاری ہے۔ کولمبیا کے صدر گوستاو پیٹرو نے گلوبل اسموتھ فلوٹیلا کے کارکنان کو حراست میں لیے جانے کے بعد تمام اسرائیلی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان کیا ہے۔ صدر پیٹرو نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیلی وزیراعظم کا یہ عمل بین الاقوامی جرم ہے۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ فوری طور پر ختم کرنے کا بھی اعلان کیا۔ انسانی حقوق کے کارکنوں اور فلوٹیلا منتظمین نے کولمبیا کے اس اقدام کو سراہا اور عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی پر عملی اقدامات کریں۔ فلسطینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے بیڑے کو روکنے کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ برطانیہ نے کہا کہ بیڑے کی جانب سے لائی گئی امداد کو زمینی سطح پر انسانی ہمدردی کی تنظیموں کے حوالے کیا جانا چاہیے تاکہ اسے غزہ میں محفوظ طریقے سے پہنچایا جا سکے۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم ایک انسانی ہمدردی کے مشن کو روک کر اسرائیل نے نہ صرف فلسطینی عوام کے حقوق بلکہ دنیا کے ضمیر کے لیے بھی مکمل حقارت کا اظہار کیا۔ یونان، جرمنی، بیلجیم، ارجنٹینا، تیونس، لیبیا، مصر، ترکی، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی سمیت کئی ملکوں میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف بینرز اور کتبے اٹھا رکھے تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ امدادی کارکنوں کو نقصان پہنچا تو یہ ناقابل قبول ہوگا۔ اٹلی کے دارالحکومت روم میں مظاہرین نے ریلوے اسٹیشن اور شاہراہیں بند کر دیں، جبکہ برسلز، برلن، ایتھنز اور بیونس آئرس میں بھی بڑی ریلیاں نکالی گئیں۔ ترکی میں امریکی اور اسرائیلی سفارتخانوں کے باہر مظاہرین کی بڑی تعداد جمع ہوئی اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی دیکھنے میں آئی اور مارکیٹ 2849 پوائنٹس کے اضافے کے بعد تاریخ کی بلند ترین سطح 1,68,489 پر بند ہوئی۔ تفصیل بتائیں گے ضمیر عباس۔ عالمی سطح پر ابھرتا ہوا پاکستان ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امریکہ، چین اور روس سمیت دنیا کے مختلف ممالک پاکستان کے ساتھ باہمی اور تجارتی تعلقات کو مزید مضبوط بنا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ حکومت کی معاشی پالیسیز کی بدولت ملک میں روپیہ مستحکم ہو رہا ہے، جو کہ کاروباری سرگرمیوں میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ ملک کے تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان ظاہر کر رہے ہیں، جس کا براہ راست اثر ملکی کیپٹل مارکیٹ پر بھی پڑ رہا ہے۔ آج دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 2975 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ ہوا، جس کے بعد مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح 1,68,619 پر بھی پہنچی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومتی پالیسیز کی وجہ سے سرمایہ کاروں کا اعتماد دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے۔ مارکیٹ میں پچھلے 2 مہینے سے ایک کنٹینیویشن ہے بل رن کی، جس میں کارپوریٹ ارننگ کے ساتھ ساتھ جو آپ کی خارجہ پالیسی کی کامیابی ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اسپیشلی US کے ساتھ جو آپ کے معاملات
मामलात जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, पहली बार पाकिस्तान के लिए नज़र ये आ रहा है कि इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की इस वक्त जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त उजागर हो रही है। म्यूचुअल फंड्स की तरफ से और रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से इस वक्त मार्केट में एक बहुत जो है वो कॉन्फिडेंस का इजहार किया जा रहा है, नया पैसा मार्केट की तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है और उसका बेसिक रीज़न यही है कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हर उस दौर में जब कभी भी आपकी खारजा पॉलिसी की कामयाबी होगी, साथ साथ आपका IMF का रिव्यू भी चल रहा है और उससे भी इन्वेस्टर को एक होप है कि वहाँ से भी कुछ अच्छी ही खबरें सुनने को मिलेंगी। आज मार्केट में मजमूई तौर पर 489 कंपनियों के शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसमें 239 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में तेजी, 227 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। आज मार्केट में 70 अरब 19 करोड़ रुपए की लागत के 5,26,000 सौदे हुए, जिनमें 1 अरब 57 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स का कारोबार हुआ। आज बाजार हिस्सेस में कमर्शियल बैंक्स, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स और म्यूचुअल फंड्स के शेयर्स में तेजी रही। जमीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के नशरियाती इदारे CGTN को खुसूसी इंटरव्यू में कहा कि CPEC बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का फ्लैगशिप मंसूबा है जो पूरे खित्ते के लिए तरक्की का बायस बनेगा। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। प्रोग्राम वर्ल्ड टुडे में गुफ्तगू करते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने चीन के हालिया दौरे को यादगार करार देते हुए कहा कि चीन के अवाम ने मोहब्बत और अपनायत का मुजाहरा किया। उन्होंने कहा कि चीन ने टेक्नोलॉजी और मेहनत के जरिए दुनिया में मुकाम बनाया। सदर मुमलिकत ने कहा कि जंगों का नहीं, मौशी तरक्की का सोचना होगा। हम पुरअमन बकाए बाहमी पर यकीन रखते हैं। Grace of our two nations friendship, Chinese are always very willing to help us. And we are very willing to help China because China is the future and all of the East will work with China. China's initiatives, I bring to China the international goodwill and the Pakistani people's goodwill and the assurance that we stand with China in good times and bad times. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। CPEC पूरे खित्ते के लिए तरक्की का बायस बनेगा। We are the closest port to China and the land route. Everything needs development and improvement with modern technology coming in. We can drive down to each other's countries. Not many countries can say we can drive down to China. So it's a great futuristic concept, and when it starts working, the employment for the young people, there's employment for the region that is in, they get more attention, they get more trade, they get more facilities, so there is great importance. सदर मुमलिकत ने ज़राअत, तवानाई और रेलवे के शोबों में चीन के तजर्बात से सीखने पर जोर देते हुए कहा कि पानी की बचत, काबिल तजदीद तवानाई और जदीद टेक्नोलॉजी से ही तरक्की मुमकिन है। तालीम, सेहत और सियाहत में भी दोनों ममालिक के दरमियान ताउन तेजी से आगे बढ़ रहा है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए सूरत हाल का सख्त नोटिस ले लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने शहरियों से पुरअमन रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आईनी और जमहूरी हक है, ताहम मुजाहिरीन अमन आमा को नुकसान पहुँचाने से गुरेज करें। वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुजाहिरीन के साथ तहम्मुल और बुर्दबारी से पेश आएँ, अवामी जज्बात का एहतराम यकीनी बनाएं और किसी भी गैर ज़रूरी सख्ती से इज्तनाब बरतें। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के मसाइल को हल करने के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म ने मुजाहिरों के दौरान होने वाले नाखुशगवार वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए वाक़े की शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया है और एहतजाजी मुजाहिरों से मुतासरा ख़ानदानों तक फ़ौरी इमदाद पहुँचाने की हिदायत की है। हुकूमती सतह पर मसले के पुरअमन हल के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने मुज़ाकराती कमेटी की तौसीअ का फैसला किया है। कमेटी में सेनेटर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़रा सरदार यूसुफ, एहसन इकबाल, साबिक सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर मसूद खान और कमर ज़मान कायरा को शामिल किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने एक्शन कमेटी के अरकान और क़यादत से अपील की कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। कमेटी अपनी सिफारिशात और मुजव्वज़ा हल बिला ताख़ीर वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को भिजवाएगी ताकि मसाइल के फ़ौरी तदारुक के लिए इक़दाम किए जा सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने वतन वापसी पर मुज़ाकरात के अमल की निगरानी का ऐलान किया। आला सतह मुज़ाकराती कमेटी के अरकान की मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोशिश है जल्द अज जल्द सूरत हाल मामूल पर लाई जाए। हुकूमत अवाम की मुश्किलात को कम करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। मुल्क दुश्मन अनासर अमन और इस्तेहकाम को सबूताज करना चाहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम मुहिब वतन है, उनके जो जज्बात हैं हम उनकी कदर करते हैं और उनको ये यकीन दिलाते हैं कि कोई ऐसा कदम कि जो हुकूमत
کے بس میں ہے جس سے کہ ان کی مشکلات کو دور کیا جا سکے. میں امید کرتا ہوں کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے دوست ہیں وہ بھی پوری فراخی قلب کے ساتھ اس تعطل کو دور کریں گے تاکہ آزاد کشمیر میں جو چند دنوں میں عمومی طور پر جو شدید بے چینی اور اضطراب عوام میں پایا جاتا ہے اس کا کلا کما ہو سکے. اس صورتحال سے جتنی جلدی نکالا جا سکے نکلے، کیونکہ ایسی صورتحال میں کوئی بھی پاکستان دشمن، کشمیر دشمن جو ہے اس کے کئی عزائم ہو سکتے ہیں. ایک ایسا راستہ جو قانون اور آئین کے مطابق ہو، امن و امان کی صورتحال جو ہے اس کو بھی بحال رکھا جا سکے. خلوص نیت سے چاہتے کہ احتجاج ختم ہو اور کشمیر عوام اس مشکل سے باہر نکل آئے. ہم یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ کشمیر کی بہتری کے لیے، آزاد کشمیر کے لیے اور کشمیر کاز کی بہتری کے لیے وہ بات چیت کریں گے. معاملات کو پرامن طریقے سے بات چیت کے ذریعے، ڈالگ کے ذریعے حل ہونا چاہیے. اور تشدد احتجاج کسی بھی معاملے کا اور مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ ہمارے بھائی جو اس وقت احتجاج کے موڈ میں ہیں، تو وزیر اعظم پاکستان کی اس کاوش کو، ان کی اس تشویش کو غور سے سنیں گے، دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ تعاون فرمائیں گے. آزاد کشمیر میں احتجاج کے آڑ میں عوامی ایکشن کمیٹی کے شرپسند عناصر اشتعال اور تشدد پر اتر آئے. پرتشدد مظاہروں میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. تفصیل جانتے ہیں یاسر حسین سے. حکومت کی جانب سے متعدد بار مذاکرات کی دعوت کے باوجود آزاد کشمیر میں عوامی ایکشن کمیٹی کا احتجاج جاری ہے. شرپسندوں نے پولیس اہلکاروں سے اسلحہ اور دیگر سامان چھین لیا. شرپسندوں کے ہاتھوں زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی نے حملہ کیا، ہمیں یرغمال بنا کر وردیاں پھاڑی اور پتھر اور ڈنڈے مارے. انہوں نے ہمیں یرغمال بنایا ہے، انہوں نے ہماری وردیاں بھی اتاری ہے، پتھر بھی مارے ہیں اور سوٹے بھی مارے ہیں. وہ پہاڑیوں پہ چلے گئے، وہاں سے فائر کرتے رہے. فائر کرنے کے بعد انہوں نے آنسو گیس پھینکا. ان کے ہاتھوں میں وہ کل لگائے ہوئے تھے، آئینی کل، وہ لوہے کے کل ہوتے ہیں، انہوں نے لگائے. اس کے ساتھ بے دردی سے انہوں نے یہ ملازمین کو مارا. ایس پی صاحب خود بھی زخمی ہوئے اور جوانوں کو بھی مارے. دوسرا، ہمارے جتنی سرکاری سامان تھے اس میں کٹ تھے، اس میں 12 بور گنے تھے، اس میں ٹیئر گیس والے گن تھے. وہ ساری چیزیں، ہمارے کپڑے، ہماری وردیاں، سب کچھ انہوں نے ہم سے چھین کے انہوں نے جلا دیے. مظاہرین تھے نا، انہوں نے ہمارے یعنی کہ رہائش گاہ پہ آئے، رہائش گاہ کا گھیراؤ کیا ہے. گھیراؤ کرنے کے بعد انہوں نے ہمارا سب کچھ سامان وغیرہ جلا دیے. ویپن 30 بور تھے ان کے پاس 9mm پسٹل تھے. جس ایمبولینس میں میں جا رہا تھا اس ایمبولینس کو انہوں نے چھوڑا، پوری ایمبولینس انہوں نے شیشہ سمیت تباہ کی ہے. پہلے انہوں نے کنٹینر کو ہٹایا، ان کے پاس اسلحہ تھا سر، انہوں اسلحے سے انہوں نے سر ہمارے اوپر فائرنگ وغیرہ بھی کی ہے، لائیو ایمونیشن سے فائرنگ کی ہے. اس کے بعد ہماری نفری ہے، ان کو انہوں نے مارا ہے، ان سے ٹیئر گیس گنیں لی ہیں، ان سے ہمارے اوپر شیلنگ کی ہے. آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے پرتشدد مظاہروں میں 6 شہری اور 3 پولیس اہلکار شہید ہوئے. تقریباً 172 پولیس اہلکار ان مظاہروں میں زخمی بھی ہوئے ہیں. زخمی پولیس اہلکاروں میں 12 کی حالت تشویشناک ہے. پرتشدد مظاہروں کے دوران 50 شہری زخمی ہوئے ہیں. حکومت آزاد کشمیر نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ پرامن رہیں. سوشل میڈیا پر ایک مخصوص ایجنڈے کے تحت پھیلائی گئی فیک نیوز پر کان نہ دھریں، صرف مستند اور مصدقہ خبروں کو ہی شیئر کریں. یاسر حسین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیمز اسپتال میں آزاد کشمیر میں زخمی ہونے والے اسلام آباد اور آزاد کشمیر پولیس کے اہلکاروں کی عیادت کی. وزیر داخلہ فردن ہر زخمی اہلکار کے پاس گئے اور ان کے جذبے اور بہادری کو سراہا. محسن نقوی نے کہا کہ شرپسندی کے باوجود آپ نے تحمل سے کام لیا. آپ پاکستان کے بہادر سپوت ہیں اور ہم سب کو آپ پر ناز ہے. وزیر داخلہ نے اسپتال انتظامیہ کو زخمی پولیس اہلکاروں کو بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت کی. انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج ہر کسی کا حق ہے، لیکن کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پاکستانیوں کے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں. حکومت کشمیری بھائیوں کے مسائل کے حل کے لیے ہمہ وقت تیار ہے. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے آزاد کشمیر کے عوام سے پرامن رہنے کی اپیل کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کے عوام کی جدوجہد اور قربانیاں یاد دلائی ہیں. ایکس پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کے عوام کی 3 نسلوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے جیلیں کاٹی، پھانسیاں چڑھے، گولیاں کھائیں. وہ پاکستان سے والہانہ محبت کی قیمت روزانہ ادا کر رہے ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ آپ کو جو سہولیات میسر ہیں ان کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کہ کشمیر کی جنگوں میں پاکستان کے ہر صوبے کے جوان شہید ہوئے. پاکستان نے ہمیشہ ہر فورم پر کشمیر کی بات کی ہے.
कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। कम आमदन वाले खानदानों के लिए बड़ी खुशखबरी। अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत 15 लाख रुपए तक के कर्जे फराहम किए जा रहे हैं। आए आप भी आसान और बिला सूद कर्जे के हुसूल के लिए अभी ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करें। अल्हम्दुलिल्लाह 16,000 घरों की तामीर मुकम्मल। 85,000 से जायद खानदानों में 102 अरब रुपए के कर्जे दिए जा चुके हैं। 5 सालों में 5 लाख अफराद को घरों की तामीर के लिए कर्जे दिए जाएंगे। अपनी छत अपना घर, जारी है खुशियों का सफर। हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नौजवान पाकिस्तान के सबसे बड़े शराकतदार हैं। इनकी काबिलियत और इस्तादाद में इजाफे का तहैया कर रखा है। वो पोजीशन होल्डर्स तलबा से खिताब कर रही थी, जिसकी तफसील बताएंगी वर्दा सलीम। लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स में पंजाब के मैट्रिक और इंटरमीडिएट पोजीशन होल्डर्स तलबा के एजाज में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में म्यार तालीम के फर्क को खत्म करना अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि मेरिट पंजाब हुकूमत का तुर्रे इम्तियाज है। हर शहर में बड़े स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। डिजर्विंग बच्चों को स्कॉलरशिप्स मिले तो अब 80,000 बच्चे पंजाब के अंदर जो है वो स्कॉलरशिप्स पे आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आज पोजीशंस बिकती नहीं है। पंजाब में आज मेरिट की पामाली नहीं होती। पंजाब में आज इम्तहानी सेंटर्स जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स है वो बिकते नहीं हैं। आज पंजाब में अगर किसी ने मेहनत की है तो वो ये मेरे सामने बैठा हुआ है। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आजकल आपको सिर्फ किताब और पेपर और पेंसिल से गुजारा नहीं होता। मैं समझती हूँ कि आपको रिसर्च करनी है, आपको अपनी असाइनमेंट्स करनी है, आपको गैजेट्स की ज़रूरत है। इसलिए मैंने ये सोचा कि मैं जो बच्चे 60% से ज़्यादा परफॉर्म करते हैं उनको लैपटॉप्स में उनके हाथ में बतौर तोहफा दूँ। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि मुल्क को माशी मुश्किलात से निकाल कर तरक्की की जानिब गामजन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मायूसी फैलाने वाले और जलाओ घेराव की तरगीब देने वाले अवाम के खैर खा नहीं। नौजवान किसी के जाती मफाद का शिकार मत हों। परफॉर्मेंस पीछे रह जाए, नैरेटिव आगे चला जाए तो मुल्क के साथ वो होता है जो 2018 से लेकर 2022 तक हुआ है। और शहबाज शरीफ को खाली खजाने मिले थे और लोग कहते थे आज डिफॉल्ट होगा और कल डिफॉल्ट होगा। मेरे बच्चों, कभी भी फेक प्रोपेगेंडा को अपने दिल में जगह मत देना। कभी भी अगर आपको कोई ये कहे कि मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूं, मेरे बच्चे तो आराम से बाहर बैठे, तुम लोग निकलो और अपने मुल्क को आग लगा दो, इस बात पे कभी कान न धरना। ये आपको जेलों की सलाखों तक तो जरूर लेके जाएंगे, ये आपके मुस्तकबिल को तारीख तो जरूर करेंगे, ये आपकी तरक्की को बर्बाद करके रख देंगे। हकीकत वो है जो ये मेरे सामने बैठी है, ये ग्रीन सैशेस पहन के जो अचीवर्स और जो विनर्स मेरे सामने बैठे हैं। हकीकत वो है जो ग्रीन बसेस की सूरत में पंजाब की सड़कों पे दौड़ रही है। हकीकत वो है जो ऑरेंज लाइन की सूरत में लोगों को ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। हकीकत वो मेट्रो बस है जो पंजाब के कई शहरों में माशाल्लाह बन गई है और बनने जा रही है। हकीकत वो 90,000 घर हैं जो लोगों को मिल रहे हैं। हकीकत वो 20,000 किलोमीटर की सड़कें जो पिछले 1 साल में बनी है। हकीकत वो तमाम सरकारी स्कूल जो मयारी स्कूल है वो बन रहे हैं, वो हकीकत है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के हर बोर्ड के पोजीशन होल्डर्स तलबा में मेडल, सर्टिफिकेट और नकद इनामात तकसीम किए। उन्होंने पोजीशन होल्डर्स तलबा, उनके वालिदैन और असातिज़ा को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर तलबा के एजाज में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। पंजाब पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने तलबा को सलामी पेश की। वर्दा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पेशावर में पाकिस्तान बिजनेस समिट से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया में मकाम दिलाने के लिए तालीम और टेक्नोलॉजी में तरक्की नागुज़ीर है। समिट से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी और दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। तफसील जानते हैं साजिद अख्तर से।
समिट से खिताब करते हुए कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सईद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि मुआशी मैदान में तरक्की के लिए पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी और तालीम में मजीद तरक्की करना होगी। उन्होंने कहा कि मईशत की बेहतरी के लिए किए गए इक़दामात की बदौलत मुआशी खसारे में कमी वाक़या हुई है और मुल्क के GDP में बेहतरी नजर आ रही है। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से सही सिमत में जा रहा है। मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहे हैं। हुकूमत सरमायाकारी के लिए अच्छा माहौल देने के लिए कोशा है। उन्होंने कहा कि खैबर पुख्तनख्वा में सयाहत को बाकायदा सनत का दर्जा देकर इसे ज़र मुबादला का बेहतरीन जरिया बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि सयाहत के फ़रोग़ के लिए अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी ज़रूरी है। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए लोकलाइजेशन ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि मईशत में प्राइवेट सेक्टर का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को आगे लेकर जाना है, जिसके लिए टैक्स में इस्लाहात के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि मकामी और गैर मुल्की सरमायाकारी की पॉलिसी में हम आहंगी ज़रूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि निजकारी के अमल को मजीद बेहतर बनाया जा रहा है ताकि सरमायाकारी के मुस्बत नताइज मुरतब हों। वफाकी वजीर ने कहा कि टैक्स के दायरे को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। FBR का काम अब सिर्फ टैक्स इकट्ठा करना होगा। अगले साल का बजट टैक्स पॉलिसी ऑफिस पेश करेगा। तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए निशकारी मोहम्मद अली ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने दुनिया का मंजरनामा तब्दील कर दिया है। हमें इस शोबे में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की इकॉनमी मार्केट बेस्ड होनी चाहिए जो 24 करोड़ आवाम की नुमाइंदगी करे। उन्होंने कहा कि मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए निशकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। गवर्नर खैबर पुख्तनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पुख्तनख्वा मादनी वसाइल, सस्ती पन बिजली और सयाहत के बेपनाह मौके रखता है। इस मौके से इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की सूरत हाल के असरात खैबर पुख्तनख्वा पर मुरतब हो रहे हैं। इस हवाले से अमन मुज़ाकरात नागुज़ीर है। सरमायाकारी बोर्ड के साबिक चेयरमैन मोहम्मद असफर एहसन ने कहा कि शफाफियत और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी के बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क को मुस्तहकम बुनियादों पर खड़ा करने के लिए तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मुल्क और सूबों को आइन के मुताबिक चलाया जाए तो किसी किस्म का तसादुम पैदा नहीं होगा। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी के हमरा उनकी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की तफसील बताएंगे अख्तर खान। गवर्नर हाउस पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर फैसल करीम कुंडी और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि सियासी जमातों के दरमियान इख्तिलाफात जमहूरियत का हिस्सा है। किसी मामले पर अलग सियासी राय रखना जमहूरियत का हुस्न है। ताहम मुल्क की सलामती और जमहूरियत की बका के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में सदारती इख्तियारात वज़ीर-ए-आज़म को मुंतकिल करके पार्लियामानी निज़ाम को मजबूत बनाया। खैबर पुख्तनख्वा समेत पूरे मुल्क में अमन के क़याम के लिए तमाम सियासी जमातों और स्टेक होल्डर्स को मुत्तहिद होना होगा। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के हवाले से होने वाली कोशिशों पर कायम मकाम सदर ने कहा कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान तनहा कोई फैसला नहीं करेगा, बल्कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और सऊदी अरब, तुर्की और दीगर मुस्लिम ममालिक के साथ इज्तिमाई मुशावरत के तहत आगे बढ़ा जाएगा। जो फॉरेन पॉलिसी है इज़ द पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट और वफाक की जो पॉलिसी होगी उसको टो करना चाहिए। हम अकेले में कोई हमने फैसला किया है ना कोई करने जा रहे हैं। सिर्फ ये है कि हमने जो वहाँ मुआहदा हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ वो इज्तिमाई सोच के साथ हुआ है। वो सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ का फ़ैसला नहीं है या जनरल आसिम मुनीर का फ़ैसला नहीं है। वो जितने हमारे इत्तेहादी हैं, खा वो सऊदी अरेबिया हो, वो इंडोनेशिया हो, वो तुर्किया हो और जॉर्डन हो, उन सब ने मिल के UAE हो, उन्हें सब ने मिल के एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार किया है जिसके लिए आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हु इज़ ऑल्सो द फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने तफसील के साथ उसमें वजाहत की है। जब सेशन अब शुरू होगा तो इंशाल्लाह वो फॉरेन मिनिस्टर
एतमाद में लेंगे पार्लियामेंट को। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से सवाल पर उन्होंने कहा कि खारिजा पॉलिसी विफाक की जिम्मेदारी होती है, सूबों को विफाक के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि नए सूबों के क़याम के हवाले से भी आइन में वाज़िह तरीक़ाकार मौजूद है। कालाबाग डैम समेत तमाम मुतनाज़ उमूर को मुश्तरका मफादात कौंसिल के जरिए हल किया जाना चाहिए। कायम मकाम सदर ने कहा कि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन अंदाज में पेश करके सफारतकारी की नई मिसाल कायम की। अकदर खान, PTV न्यूज़, पेशावर। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में होने वाले इजलास में आइंदा साल पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम काउंसिल ऑफ हेड्स के इजलास की तैयारियों का जायजा लिया गया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की कि शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहाने मुमलिकत के इजलास के शानदार इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार से हंगरी के नए तैनात होने वाले सफ़ीर डॉक्टर ज़ोल्टन वार्गा ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और दिफा समेत मुख्तलिफ शोबों में पाकिस्तान और हंगरी के बढ़ते ताउन को सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने नए तैनात होने वाले सफ़ीर के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि नए तैनात होने वाले सफ़ीर की काविशें दो तरफ़ा ताल्लुकात की मज़ीद मजबूती का बायस बनेगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की सदारत में ज़ब्त और तब्दील शुदा नंबरों वाली गाड़ियों के हवाले से जायज़ा इजलास इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में FPR की जानिब से नॉन कस्टम गाड़ियों की ऑनलाइन नीलामी पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास से खिताब में नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत शफाफियत और अवामी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की सदारत में इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में अहम माली और तजारती इक़दामात की मंजूरी दी गई। रोजवेल रूरल न्यूयॉर्क को माली मुआवनत देने की तजवीज़ पर वज़ारत दाखिला को हिदायत दी गई कि तखमीना देखकर मामला दोबारा पेश करे। इजलास में डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के लिए हासिल की गई ज़मीन पर मुकीम अफराद को 4 अरब रुपए की तकनीकी ज़िम्नी ग्रांट की मंजूरी दी गई, जिसके लिए बकिया रकम CDA फ्राहम करेगा। ECC ने अमन व अमान की बहाली के लिए वज़ारत दाखिला को 20 अरब रुपए देने की मंजूरी दी। इजलास में फ्रंटियर कोर शिमाली के लिए 17 करोड़ 48 लाख रुपए की इजाफी ग्रांट भी मंजूर की गई। कमेटी ने अफगानिस्तान, ईरान और रूस के साथ बॉर्डर ट्रेड के B2B मैकेनिज्म में तरमीम के लिए वज़ारत तिजारत की मुजव्वज़ा सिफारिशात भी मंजूर कर ली। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में लोगों को भारतीय फोर्सेज के हाथों तशद्दुद और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का बड़े पैमाने पर मुसलसल सामना है। अदम तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर KMS की एक रिपोर्ट में कहा गया कि कश्मीरी गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से ज़्यादा अरसे से भारतीय रियासती दहशत गर्दी का शिकार हैं। भारतीय फोर्सेज की तरफ से निहत्ते कश्मीरी नौजवानों का मावरा अदालत कत्ल, बिलाजवाज़ गिरफ्तारी, तशद्दुद और दीगर मज़ालिम रोज़ का मामूल है। काबिज़ भारतीय फौजियों ने जनवरी 1989 से अब तक 96,474 कश्मीरियों को शहीद किया। रिपोर्ट में आलमी बरादरी पर जोर दिया गया कि मकबूजा इलाके में जारी भारतीय जंगी जराइम का नोटिस ले भारतीय काबिज़ इंतजामिया ने कश्मीरियों के अमलाक की जब्ती का सिलसिला जारी रखते हुए जिला कुपवाड़ा में एक और कश्मीरी नज़ीर अहमद गनाई की मलकियती अराजी काले कानून UAPA के तहत जब्त कर ली। लद्दाख खिते के अजला, लेह और करगिल में आज मुसलसल नवे रोज़ भी कर्फ्यू और पाबंदियों का सिलसिला जारी रहा। मोबाइल, इंटरनेट और दीगर मवासलाती खदमात बदस्तूर मुअत्तल हैं। 4 से ज़्यादा अफराद के जमा होने पर पाबंदी है, जबकि मुजाहिरीन को रोकने के लिए बड़ी तादाद में भारतीय फौजी, पैरामिलिट्री और पुलिस एहलकार तैनात हैं। लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के एक रुकन ने भारतीय फोर्सेज के हाथों शहरियों के कत्ल और लोगों की गैर कानूनी हिरासत पर दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। सहाफ़ियों के हुकूक और सहाफ़ती आज़ादी के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने एक बयान में कहा है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में सहाफ़ी मुसलसल दबाव, धमकी और पुरखतर माहौल में काम करने पर मजबूर हैं। बयान में कहा गया कि मकबूजा जम्मू कश्मीर इस वक्त दुनिया के सबसे ज़्यादा फौजी तैनाती वाले खत्तों में से एक है। अगस्त 2019 के बाद से इलाके में इजहार राय की आज़ादी के हक को मुकम्मल तौर पर सल्ब कर लिया गया है। बयान में कहा गया कि भारतीय फोर्सेज की तरफ से इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों जैसे असास मौज़ूआत को कवर करने वाले सहाफ़ियों की गिरफ्तारी समेत इंतकामी कार्रवाइयों का सामना है। और अभी आपको आगाह करें कि स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक ने पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन पाकिस्तान के इंतखाबात के मौके पर प्रेस गैलरी और प्रेस लाउंज का दौरा किया। स्पीकर कौमी असेंबली ने इंतखाबी अमल का जायजा लिया और इलेक्शन कमेटी से मुलाकात की। चेयरमैन इलेक्शन कमेटी तारिक समीर ने अयाज सादिक को इंतखाबी अमल और ज़ाब्ता अखलाक से आगाह किया। सरदार अयाज सादिक ने कहा कि PRA और प्रेस गैलरी पार्लियामान का अहम जुज़ है। पार्लियामानी रिपोर्टर्स अवाम और पार्लियामान के दरमियान पुल का किरदार अदा करते हैं। उन्होंने कहा कि PRA के खुशगवार और शफाफ इंतखाबात खुशाइंद हैं। इस्लामाबाद में टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से मुतालिक 2 रोज़ा बैनुल-अक़वामी मुकालमे का आगाज़ हो गया है। तफसील जानते हैं मोहम्मद फैसल राव से।
ये मुकालमा टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सपोर्ट प्रोग्राम यूरोपीय यूनियन और जर्मनी के ताउन से मुनक्किद किया जा रहा है। मुकालमे का मौजू है तब्दील होते हुए समाजी और मुआशी रुझानात में टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग का किरदार। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुनरमंद नौजवान ही मुल्क की मुईशत को मुस्तहकम करने और मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 64% of the Pakistan population is below the age of 30. Our young people enter the labor market in Pakistan, but yet our current training capacities are about 400,000. I hope this dialogue, this effort today help to find a solution in this regard. वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने कहा कि पूरी दुनिया में हुनरमंद अफराद की मांग बढ़ रही है और आने वाला मुस्तकबिल हुनरमंद अफराद का ही है। In the future there is no more simple labor demand, but every country is now demanding people, manpower with semi-skilled or skilled workforce. So this is one of the steps in commemorating and encouraging institutions. चेयरमैन वजीर आजम यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि वजीर आजम यूथ स्किल्स प्रोग्राम के जरिए अपनी यूथ को हुनरमंद बना रहे हैं। नेफटेक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आमिर जान और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि ये मुकालमा नेटवर्किंग, ताउन, इल्म के तबादले का जरिया भी बनेगा ताकि हमारी नौजवान नस्ल फनी तालीम में महारत हासिल कर सके। तकरीब में टेक्निकल एजुकेशन और ट्रेनिंग के हवाले से काम करने वाले बेहतरीन इदारों को अवार्ड्स भी दिए गए। मुकालमे का मकसद नए रुझानात पर तबादला ख्याल और स्किल्स डेवलपमेंट के जरिए शराकत दारी को मजबूत करना है। मोहम्मद फैसल राव, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। इदारा बराए फ़रोग़ कौमी ज़बान इस्लामाबाद में मुमताज़ शायर, नसर निगार और दानिशवर सलमान बासित के साथ मुकालमे का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुल्क के मुमताज़ मुसन्नफ़ीन, शोरा और दानिशवरों ने सलमान बासित के फ़न और शख्सियत के हवाले से मकाले पढ़े। साहिब तकरीब सलमान बासित ने मौजूदा अहद में अदब की सूरत हाल और अपने अदबी सफ़र के मुख्तलिफ मराहिल पर इज़हार ख़याल किया। अदब से इन डिफरेंट असनाफ का ताल्लुक़ है तो ये कहीं गैर शौरी तौर पे पता नहीं ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी तशना गैर मुकम्मल चीज़ें मेरे अंदर मौजूद थीं। थोड़ा सा अफसाना था, थोड़ी सी खाका निगारी थी, थोड़ी सी नसर नविश्त। मैं चूँकि नॉस्टैल्जिक हूँ बाय नेचर तो मैं उसमें झांकता रहता था। कुछ शायरी थी, कुछ सफ़रनामे थे, कुछ पंजाबी का अदब था, कुछ अंग्रेज़ी अदब था। तो ये तमाम चीज़ें कहीं रच बस गईं और कुछ ना कुछ मैं अपनी कंट्रीब्यूशन जो थी वो उसमें मैं वो देता। वेदर अपडेट में खुशामदीद। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट कहती है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, ज़ेरी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर तेज़ बारिश हो सकती है। रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तुरबत और लसबेला में 41 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खेलों की खबरों में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेटों से कामयाबी हासिल की। मैच पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया गया। कोलंबो में खेले गए इवेंट के तीसरे मैच में कौमी खवातीन टीम ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और 38.3 ओवर्स में 129 रन बनाकर आउट हो गई। रमीन शमीम 23 और कप्तान फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रहीं। मुनीब अली 17, सिद्रा नवाज 15 और आलिया रियाज 13 रन बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शर्ना अख्तर ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। मरूफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेटें हासिल की। बांग्लादेश ने हदफ 31.1 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। राबिया हैदर ने 54 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। निगार सुल्ताना ने 23 और सुबहाना मोस्तरी ने 24 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की जानिब से फातिमा सना, दियाना बेग और रमीन शमीम ने 1-1 विकेट हासिल की।
इंटरनेशनल लीग T20 का प्लेयर्स ऑक्शन पाकिस्तान के फखर जमान, नसीम शाह और हसन नवाज डेजर्ट वाइपर्स का हिस्सा बन गए। दुबई में मुनक्किद होने वाले IL T20 के प्लेयर्स ऑक्शन में डेजर्ट वाइपर्स ने फखर जमान की खिदमत $80,000 के इवज हासिल की। फास्ट बॉलर नसीम शाह को भी $80,000 जबकि नौजवान बल्लेबाज हसन नवाज को $40,000 में साइन किया गया। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लीग में शिरकत PCB के NOC से मशरूत है। खेल की खबरों के साथ ही खबरनामा मुकम्मल हुआ। मजीद बाखबर रहने के लिए आप हमारे साथ रहिए। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।